Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. This is class 6, subject. Your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. ओके, we will continue the question answers from the question number 13. Why could you not use an elastic measuring tape to measure the distance? Answer: an elastic measuring tape is stretchable, so we may get the different values for the same length each time. That means the question is asking the the measuring tape which is made from the plastic or something else material. Okay, so what happen if it made up from the elastic material, and why we can't use that kind of measuring tape? मतलब इलास्टिक से बनी हुई जो मेजरिंग टैप, जो मेज़र करने के लिए जो टैप आती है, जिसे आप लोकल लैंग्वेज में इंची टैप एंड ऑल कहते हैं. ओके, जो इंची टैप, जो मेजरिंग टैप है, वो या तो कोई दूसरे मटेरियल जो स्ट्रेचेबल नहीं होता, कपड़ा या इलास्टिक से बनी, प्लास्टिक से बनी होती है, तो हम उसे इलास्टिक से क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इलास्टिक क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है. तो जब भी हम सेम लेंथ मेज़र करेंगे, हर टाइम हमें क्या आएगी, अलग अलग कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगी इस वजह से. ओके, 14 क्वेश्चन. द डिस्टेंस बिटवीन द राधा's होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर. एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर. आंसर: 1 kilometer. This is the calculation, so you know very well that the 1 kilometer is equal to. So if there is 1000 meter in 1 kilometer, then in 3250 meter it would be 3.25 kilometer. Clear? आपको राधा और उसके होम की डिस्टेंस दे रखी है 3250 मीटर. आपको इसको किलोमीटर में चेंज करना है. जैसा कि आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अगर 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है तो 3250 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो उसको क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.25 किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. State the difference between the circular and the oscillating motion with an example. So for that you have to make the table 2 column and the 2 column with the 3 row. Okay, 2 कॉलम बनाना, 3 रो बनानी है. आपको सर्कुलर और ऑसिलेटिंग मोशन में क्या बताना है, डिफरेंस एग्जाम्पल के साथ. सो first is circular motion and periodic motion, in which a body revolves around a fixed point on a circular path, while in the oscillating motion the body moves to and fro around a fixed point. Circular motion means the similarities between the circular motion and the oscillating motion is they are moving around a fixed point, but in circular motion they are moving on a circular path, while in the oscillating motion they are moving to and fro around that fixed point. सर्कुलर मोशन और ऑसिलेटिव मोशन में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों पीरियोडिक मोशन है, मतलब खुद को रिपीट करते हैं. ओके, और फिक्स पॉइंट पे पॉइंट में सर्कुलर पाथ पे, गोल पाथ पे मूव करते हैं. जबकि ऑसिलेटिव में टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे. ओके, एग्जाम्पल: इन द सर्कुलर मोशन अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एंड इन द ऑसिलेटिव मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम. सर्कुलर मोशन का क्या एग्जाम्पल है, जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है. और ऑसिलेटिव में क्या एग्जाम्पल है, सिंपल जो पेंडुलम है क्लॉक का, वो. क्लियर, उसका मोशन. Next category is long answer type, and the 16th question: what are the advantage of will?
Wheels means the wheel which we use in the vehicles. What are the profit or the benefits for that? Wheels, पहिए के क्या क्या एडवांटेज बेनिफिट्स है हमारे लिए. Will allow heavy object to move easily, facilitating movement or transportation. That means if you are dragging a heavy load along the ground, okay, so you can feel more, you have to do more efforts and more hard work to transport the things from one place to another. But if you are using the wheel and then you moving your goods from one place to another, it will be more easier than dragging the goods. Okay, wheel क्या करता है, अगर आप कोई हैवी बॉडी या ऑब्जेक्ट आप एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जा रहे हो, हैवी भारी घसीटते हुए ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, तो आपको ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन अगर वही हैवी सामान आप पहिए कोई भी एक आप बना रहे हो व्हीकल में पहिए लगे हुए होते हैं, अल्टीमेट व्हीकल्स में पहिए लगे होते हैं, क्लियर. और वहीं आप उस भारी सामान को पहिए की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह. What is the SI system of units and explain why such a system is needed. You have to explain the SI unit, the SI system of unit, then you have to write what is the advantage, that means why we need that system. आपको SI system का मतलब बताना है, डेफिनेशन लिखनी है और क्यों हमें चाहिए वो भी बताना है. Standard unit are those that have a fixed quantity and therefore do not vary from person to person and place to place. For example, metric system created by the French in 1790 is a standard set of units, and we need this standard unit of length and other physical quantities to obtain the same value for the measurement. That मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसका मतलब क्या होता है कि फ़िक्स क्वांटिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में क्या होगी, उसकी क्वांटिटी फ़िक्स होगी, यूनिट्स फ़िक्स होगी. और इस वजह से वो इंसान पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस क्या होता है, वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता है. इस वजह से हमें स्टैंडर्ड यूनिट की क्या ज़रूरत है, ताकि हमें सेम फिज़िकल क्वांटिटी के लिए क्या मिल सके, सेम वैल्यू. क्लियर. अगर मुझे फ़तेहनगर से जैसे फ़तेहनगर से उदयपुर की डिस्टेंस क्या है, 55 किलोमीटर. अगर ये यूनिट्स सेम नहीं होगी, अगर यूनिट्स होगी वो सेम नहीं होगी, स्टैंडर्ड नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी, तो कोई 56 बोलेगा, कोई 55 बोलेगा. लेंथ तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, फ़तेहनगर से उदयपुर 55 किलोमीटर दोनों, लेकिन हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग अलग अलग क्या दे रहा है, मेजरमेंट दे रहा है. क्लियर. 18 क्वेश्चन. (3.1 centimeter). What is the length of the needle? In this case, you have to assume that your scale is broken and the clear visible marking is from the 3 centimeter to 33.1 centimeter. Clear. इस क्वेश्चन में आपको ऐसा मानना है कि आपकी जो स्केल है जिससे आप नीडल की लेंथ मेज़र कर रहे हो उसमें आगे का पार्ट क्या टूटा हुआ और आपकी मार्किंग जो है आपको 3 सेंटीमीटर से क्लियर नज़र आ रही है. इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर एक स्केल की साइड 3 सेंटीमीटर की मार्किंग आपको नज़र आ रही है 3 से लेके 33.1 सेंटीमीटर तक. क्लियर. तो नीडल की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी. सो व्हाट विल यू डू, you will subtract the 33.1 minus 3.0 is equal to 30.1 सेंटीमीटर. आप क्या करेंगे, 33.1 में से 3 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30.1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द नीडल. 19 क्वेश्चन. What are the motion of a wheel of a moving bicycle and a mark on a blade of the moving electric fan different? Explain. That means there are two type of motions are given here. That is, first is the motion of the wheel of the bicycle and second is the motion of the electric fan. आपको इलेक्ट्रिक फ़ैन और बाईसाइकिल के पहिए के डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है. ओके.
The motion of the bicycle wheel is having combined motion, that means the translatory and the circular motion, while the electric fan is rotating at a fixed point in a circular path, that means it's showing only circular motion. Bicycle is moving also from one place to another place, and its wheel, the motion of the wheel is also moving at the बाईसाइकिल अगर किसी स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो उसके व्हीकल का व्हील का, उसके पहिए का तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन, लेकिन वो पहिया आगे भी बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं ट्रांसलेटरी और सर्कुलर मोशन दोनों है। बट इलेक्ट्रिक फैन में आप देखेंगे फैन एक फिक्स पॉइंट पे ही सर्कुलर वे में घूमता है, तो बाईसाइकिल का कंबाइंड मोशन हो गया और इलेक्ट्रिक फैन का ओनली सर्कुलर मोशन। क्लियर। 20th question. While traveling in a train, it appears that the tree near the tracks are moving, whereas the co-passenger appear to be stationary. Explain the reason. That means a train, you are traveling in a train and the co-passenger which are traveling with you, along with you, also in the same train, they are appear to be at the rest state, while the trees along the tracks are appear to be motion. जो ट्रीज़ है बाहर ट्रेन के बाहर वो तो आपको मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ ट्रेन में जो अदर पैसेंजर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो क्या है, रेस्ट की, आराम की पोजीशन में है। क्यों? बिकॉज को पैसेंजर विथ रिगार्ड टू यू आर इन मोशन विथ यू इन अ सेम ट्रेन, बट द ट्रीज अराउंड द ट्रैक आर द थर्ड ऑब्जेक्ट विथ रिगार्ड टू यू एंड दैट्स आर नॉट मूविंग विथ यू। मतलब को पैसेंजर जो है वो आपके साथ ही क्या कर रहे हैं, सेम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में मोशन में है, तो आपके लिए वो क्या हो गया, स्टेट की पोजीशन में हो गया, लेकिन जो बाहर पेड़ लगे हुए वो आपके लिए और आपके को पैसेंजर के लिए क्या हो गए, थर्ड ऑब्जेक्ट हो गए। ओके, जो कि क्या कर रहे हैं, आपके रिगार्ड में आपके साथ मूव नहीं कर रहे हैं। क्लियर। हमेशा रिलेटिव टर्म्स लेके ही चलना है। 21 क्वेश्चन. राइट डाउन द सिमिलैरिटीज बिटवीन, दैट मीन्स टू क्वेश्चंस आर, टू मोशंस आर गिवन, बतानी है। फर्स्ट, मोमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट एक्सिस एंड द मोमेंट ऑफ रोटेशन टॉप, मतलब अर्थ का मोशन मतलब रोटेशन वाला, एक ही एक्सिस पे वो घूमता है, तभी हमारे दिन और रात होते हैं। क्लियर। और दूसरा है कोई भी एक टॉप है जो किसी भी बिल्डिंग का एक सबसे ऊपर वाला टॉप है जो एक ही जगह पे घूम रहा है, उन दोनों के मोशन की सिमिलैरिटीज़ क्या है, बोथ आर मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट, दैट मीन्स एक ही पॉइंट पे दोनों घूम रहे हैं। क्लियर। सेकेंड, द बर्ड इन द स्काई एंड द फिश इन द पॉन्ड, द आंसर इज दे बोथ डोंट हैव एनी सर्टेन डायरेक्शन सो दे हैव अ रैंडम मोशन। मतलब एक बर्ड स्काई में उड़ रही है और एक फिश पानी में तैर रही है, दोनों का मोशन क्या होगा, रैंडम, बिकॉज दे डोंट हैव द सर्टेन डायरेक्शन, दैट मीन उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। 22 क्वेश्चन. If an object moves with the speed 18 km per hour in 20 minutes, find the distance covered by the object in SI unit. आपको स्पीड की SI यूनिट, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड में आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। सॉरी, आपको स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर और टाइम दे रखा है 20 मिनट्स, और आपको डिस्टेंस निकालना, और कौन किस में निकालना है, SI यूनिट में, मतलब डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। सो फर्स्ट स्टेप, यू विल कन्वर्ट द 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस की SI यूनिट में चाहिए आंसर। किलोमीटर को मीटर में करेंगे और आवर को करेंगे हम सेकेंड में। इसके लिए हमने क्या किया, 18 को 100,000 से मल्टीप्लाई किया और 60 मिनट, एक आवर में 60 मिनट our first step. Second step, you will convert the 20 minute into second. 20 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो फॉर दैट वी विल मल्टीप्लाई 20 इंटू 60, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और आएगा 1200 सेकेंड। एंड द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, which is speed is equal to distance by time,
and you will put the values according to their physical quantity. वैल्यू पुटअप करेंगे. स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना हमारे पास 1200 सेकेंड. तो स्पीड का फॉर्मूला लिखा हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. स्पीड की वैल्यू रखी, डिस्टेंस को d रखा और टाइम को 1200 रखा. आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल वी गॉट दिस 6000 मीटर. डिस्टेंस कितना आया हमारा 6000 मीटर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 23. कन्वर्ट द फॉलोइंग्स. फर्स्ट इज 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड. आपको 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. सो सिंपल, मल्टीप्लाई विद 1000 एंड डिवाइड विद द 60 इंटू 60. 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 दैट मीन्स 60 इंटू 60 से क्या करेंगे, डिवाइड. सो यू विल गेट 15 पर मीटर सेकेंड. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज 15 मीटर पर सेकेंड को 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में क्या करना है, चेंज करना है, कन्वर्ट करना है. सो यू विल जस्ट डू ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी है उसको ऑपोजिट करेंगे. किलोमीटर पर आवर आंसर. So here we complete all the question answers of the chapter number first. Do this all the work in the fair notebook, okay, with the good handwriting and as a neat and clean, and click the picture, send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. आपको ये सारा काम अपने फेयर नोटबुक में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर रात को 9 बजे से पहले सेंड करना है. थैंक यू. टिल देन हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ.